Miss Benu, so today we'll be discussing a chapter from our Invitation to English Book 1. So the name of the chapter is The Cancer Fight from Hiroshima to Houston. It's been written by Ritsuko komaki and starting. So please hit the like button and subscribe, and please praise my efforts because it's take a lot of time to make such kind of video. So please make sure to hit the like button. Thanks a lot. Let's start the video. So today we are going to start with Unit 3 of the same chapter, that is the cancer fight from Hiroshima to Houston. So which is written by our writer Ritsuko komaki. So the name of our writer is Ritsuko komaki. So we will start the Unit 3. So let's do with the warm up. So surgery, radiation, chemotherapy and proton therapy were the methods which were used for treating cancer before proton therapy was adopted. To know more about the proton therapy, read the following unit of the text. So these were the techniques which were practiced before the proton therapy was developed. Surgery was done, radiation therapy was given. So in the radiation therapy, many harmful rays were bombarded on the cells for the treatment. So that was done. Chemotherapy was done, and we use chemotherapy still nowadays. And proton therapy was but nowadays proton therapy has increased the chance of cancer patients recovery. So to know more about the proton therapy, so let's read the unit. So let's come to the text, the main text of our chapter. So, and this is the last one, I guess. So when she entered the medical school in Hiroshima, Komaki was taught the surgery was the only viable cancer cure. So when she is entering the medical school in Hiroshima, she is been taught or she is been told that सिर्फ कैंसर क्योर के लिए सर्जरी ही एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. So but in 1970s, while going for her externship, internship, residency and fellowship in Milwaukee, she began learning how radiation could cure people and then give it a different meaning to me than just an atomic bomb, she says. तो 1970 में उनको पता चलता है कि जो एटॉमिक बॉम्ब है, तो जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है वो डिस्ट्रक्शन के लिए एटॉमिक बॉम्ब के तरह से हमने यूज़ कर दिया. बट हाउएवर उसका एक पॉजिटिव साइड भी है जो कि आपको लोगों को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो क्योर कर सकता है. ये जो रेडिएशन है वो एक अच्छे तरह से भी यूज़ की जा सकती है. सो कॉइन का दो साइड्स दो पहलू हमेशा होता है. एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है. तो अगर आप उसको नेगेटिवली यूज़ करोगे तो वो एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा. अगर उसको आप पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो वो लोगों के लिए एक वरदान बन जाएगा, क्योर करेगा आपका कैंसर बाय दिस रेडिएशन थेरेपी. सो वो जब ये 1970 में कब पता चलता है उनको, जब वो एक्सटर्नशिप में जाते हैं, इंटर्नशिप में जाते हैं, रेजिडेंसी में जाते हैं और फेलोशिप के लिए जाते हैं. कहाँ पे? मिलवॉकी में जाते हैं. एक्सटर्नशिप मतलब कोई बाहर के जो एक यूनिवर्सिटी है या बाहर का कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाके वो कुछ महीने या कुछ साल के लिए एक्सटर्नशिप करते हैं. इंटर्नशिप मतलब उन्हीं के खुद ही का जो यूनिवर्सिटी है उसी में कुछ महीने के लिए करते हैं इंटर्नशिप. रेजिडेंसी दैट इज यू गो देयर, यू स्टे देयर फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन यू गेट विद अ सर्टिफिकेट. सो दैट इज the residency. And fellowship in the sense you do a group study in a particular environment, in a particular group of people. So with the cancer related more individuals, so you do that in Milwaukee. So ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप के हिसाब से आपको काम करना होता है. So that is your fellowship. ठीक है, I hope you guys understand. So she came to view localized radiation treatment as less harmful than chemotherapy and realized that it could not be equated at all with the scattered, uncontrolled radiation to the whole body that comes with exposure to an atomic bomb. ठीक है, तो वो ये देखते हैं
कि जो लोकलाइज्ड रेडिएशन ट्रीटमेंट है, लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे वो जो केंद्रीभूत करके वो दे रहे अपना केमोथेरेपी, वो मतलब सॉरी प्रोटॉन थेरेपी, जो एक जगह में वो दे रहे आपका प्रोटॉन थेरेपी, वो केमोथेरेपी जैसे हार्मफुल नहीं है, जो कि बाकी सारे हिस्सों में, बॉडी के बाकी सारे हिस्सों में भी वो रेडिएशन जो है फॉल हो रहा है, एंड वो थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड रेडिएशन है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटॉन थेरेपी को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करके एक जगह उसको दिखा के हम दे सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दी जा सकती है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। वहाँ पे वो अनकंट्रोल्ड था, लेकिन अभी जो प्रोटॉन थेरेपी आ गया है वो कंट्रोल्ड तरीके से हम वहाँ पे डाल रहे हैं, लोगों के कैंसरस सेल के ऊपर डाल रहे हैं, जो कि कैंसरस सेल को फाइट करके किल कर दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज बीन एक्सप्लेन्ड। और एटॉमिक बॉम्ब जो है वो तो डिस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज किया गया है, बट दिस radiation is being used for constructive purpose, not destructive purpose. In 1985, she and Cox went to Columbia Pre-Sebastian Medical Center in New York to work with Dr. Eric Hall, then a leading international authority on the effects of atomic bomb on humans. तो वो 1985 में कहाँ जा रहे, मतलब कॉक्स जो उनके पति हैं, उनके हस्बैंड है, तो उनके साथ वो कहाँ जा रही है, कोलंबिया प्री सेबेस्टियल मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में जो है वहाँ जा रहे हैं। किसको मिलने के लिए? डॉक्टर एरिक हॉल को मिलने के लिए। तो क्यों मिलना है? स्टडी करना है एटॉमिक बॉम्ब का जो इफेक्ट है ह्यूमन जनरेशन में कैसे है, और उसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, ये दोनों डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म मतलब अभी वो क्या मतलब जब एटॉमिक बॉम्ब गिरता है उसके तुरंत 1-2 महीने में उनको क्या देखने के लिए मिलता है, और आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स और इवन लॉन्गर तब क्या देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज व्हाट they are explaining. In 1988, she began putting her years of research to work at UT MD Anderson. तो MD Anderson जो आपका टेक्सास में है वो 1988 में ज्वाइन करते हैं। ओके, सो कौन ज्वाइन करता है? आवर राइटर रित्सुको कोमाकी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर पेज। So though protons were discovered by Ernst Rutherford in 1919, proton therapy didn't commence until 1954 at Berkeley Nuclear Physics Lab. So we have already studied in chemistry about Rutherford's atomic model. So how Rutherford developed protons, right? So protons were discovered by Ernst Rutherford in 1919, but however जो proton therapy है वो 1954 तक नहीं आया था बाहर। 1954 में बाहर आ गया आपका फिजिक्स लैबोरेटरीज में से कि प्रोटॉन थेरेपी भी दिया जा सकता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। द हार्वर्ड cyclotron laboratory partnered with Massachusetts General Hospital to begin treating the cancer patients in 1961. तो 1961 में क्या होता है, हार्वर्ड साइक्लोट्रॉन लेबोरेटरी और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का टाई अप होता है। तो दोनों आके सामने बोलते हैं कि हम कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे प्रोटॉन थेरेपी के लिए। ठीक है, प्रोटॉन थेरेपी को यूज़ करके हम कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, ये बोलते हैं वो 1961 में। बट द नेसेसरी टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव दैट द ट्रीटमेंट रिमेन कन्फाइंड टू फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अंटिल 1990। वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाले थे प्रोटॉन थेरेपी के लिए वो बहुत ही कॉस्टली था, तो इसीलिए उसको होल्ड में कर दिया गया, क्योंकि वो इतना कॉस्टली है तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 1990 तक वो अनअफोर्डेबल रहा, वो प्रोटॉन थेरेपी कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये कन्फाइंड था फिजिक्स रिसर्च लैब तक ही, उससे बाहर वो नहीं आ सकता था, 1990 तक नहीं आया। That's when the Proton Treatment Center opened at Loma Linda University Medical Center in Southern California to offer the first hospital-based program. ठीक है, तब वो क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो ये ट्रीटमेंट को ला रहा है वो हो गया आपका लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया में है। ये फर्स्ट हॉस्पिटल है जो कि ये जो आपका प्रोटॉन ट्रीटमेंट सेंटर खोल रहा है, और
और या तो फिर प्रोटॉन मेडिकल सेंटर पे ये क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला ये फर्स्ट आपका हॉस्पिटल है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Intrigued by the proton therapy research then available, Komaki and Cox visited Loma Linda early on and began to push for a similar unit at UT MD Anderson when they returned to Houston. तो ठीक है, तो ये इंस्पायर होते हैं, आपका जो है इंट्रीग्यूट मतलब इंस्पायर्ड, प्रोटॉन थेरेपी रिसर्च जो उन्होंने देखा लोमा लिंडा में, तो ये कोमाकी और कॉक्स जो उनके हस्बैंड है वो जब वापस आते हैं एमडी एंडरसन में, वो भी चाहते हैं कि लोमा लिंडा में जैसे ही उनका एक प्रोटॉन ट्रीटमेंट सेंटर सेटअप हुआ है वैसे हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक होना चाहिए, ह्यूस्टन में भी एक होना चाहिए, जैसे साउथ कैलिफोर्निया में है वैसे ह्यूस्टन में भी होना चाहिए बोल के कोमाकी और कॉक्स जो है वो उनका प्रयास जो है वो शुरू कर रहे हैं। सो देयर एफर्ट्स made off in 2006 when the $125 million proton therapy center opened its door offering a complete range of proton ट्रीटमेंट्स। तो अभी जो वो लगातार काम करते आ रहे हैं उनका जो है फल मिलना शुरू हुआ, कब हुआ, 2006 में। 2006 में $125 मिलियन खर्च कर दिया गया प्रोटॉन थेरेपी सेंटर को खोलने के लिए, कहाँ पे, एमडी एंडरसन हॉस्पिटल में शुरू करने के लिए। तो इट इज़ द ओनली सच फैसिलिटी इन द साउथ वेस्ट, मतलब ह्यूस्टन में, टेक्सास में ओपन करने वाला एक ही ऐसा फैसिलिटी अभी तक है। तो इन एडिशन टू ह्यूस्टन एंड लोमा लिंडा, द नेशन नाउ हैज सेंटर्स इन फ्लोरिडा, इंडियाना एंड मैसाचुसेट्स विद सेवरल मोर बीन प्लान। तो अभी जो है 2 सेटअप ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कहाँ पे, एक ह्यूस्टन टेक्सास में और एक सदर्न कैलिफोर्निया में, मतलब एक हो गया आपका लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी में और दूसरा हमारे कोमाकी और कॉक्स वाले एमडी एंडरसन आपका यूनिवर्सिटी में। तो ये दोनों सेटअप हो गया है, एक हो गया आपका सदर्न कैलिफोर्निया में और दूसरा हो गया आपका साउथ वेस्ट में। ठीक है, और एक हो गया आपका साउथ वेस्ट में। तो टुडे और बाकी सारे भी अभी धीरे धीरे वो खोल रहे हैं, कहाँ पे, फ्लोरिडा में, इंडियाना में, मैसाचुसेट्स में और बाकी बहुत सारे जगह में अभी प्रोटॉन थेरेपी को इस्तेमाल करने का वो सोच रहे हैं। सो टुडे कोमाकी एंड हर colleagues treat thoracic malignancies therapy that requires a team of 7 doctors, several physicians and dosimetrists and a couple dozen technicians in 10 to 15 patients daily with 4 of them taking proton therapy। तो अभी जो है कोमाकी और उनके जो कुलीग्स हैं थोरासिक प्रॉब्लम्स, मैलिग्निटीज मतलब प्रॉब्लम, समस्याएं ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये ट्रीट करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए, जैसे 7 डॉक्टर्स चाहिए, एक टीम चाहिए 7 डॉक्टर्स की, बहुत सारे फिजिशियंस चाहिए और डोसीमेट्रिक्स मतलब एक जो डोज देते हैं वो कितना डोज देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये मेजरमेंट करके उनको बताएंगे। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ डोसीमेट्रिक्स, सो दे आर नोन एज डोसीमेट्रिक्स। और बहुत सारे टेक्नीशियन चाहिए, कोई मशीन अगर ख़राब हो जाता है क्या होता है, तो ये मशीनरी को देखने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो भी उनको चाहिए। तो ये सारे चीज़ें चाहिए क्योंकि 10 से 15 पेशेंट डेली जो हॉस्पिटल में आते हैं, जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनको प्रोटॉन थेरेपी देने की ज़रूरत है। जब इतने पेशेंट्स को प्रोटॉन थेरेपी देने की ज़रूरत है तो टीम तो एक चाहिए, तो एक स्पेसिफिक टीम चाहिए जो कि सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो लाइक अदर रेडिएशन ट्रीटमेंट्स, प्रोटॉन थेरेपी रन्स अबाउट 7 वीक्स इन ऑल। तो जैसे बाकी सारे आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट्स है, प्रोटॉन थेरेपी भी 7 हफ्तों के लिए दी जाती है। 7 हफ्ते वो क्लिनिकल ट्रायल पे दी जाती है, पहले थोड़ा सा देंगे, उसके बाद धीरे धीरे डोज इंक्रीज करते हुए जाएंगे। In all, the proton therapy center with Dr. Andrew Lee as medical director
treat 70 to 80 पेशेंट्स डेली। तो 75 to 80 पेशेंट जो है वो डेली इस मेडिकल सेंटर में हम लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। और मेडिकल डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर एंड्रयू ली हो गया आपके मेडिकल डायरेक्टर। तो ये जो रेडिएशन थेरेपी उनके अकॉर्डिंगली वो दी जा रही है, प्रोटॉन थेरेपी जो है, तो ये देख रहे हैं डॉक्टर एंड्रयू ली देख रहे हैं। So let's move on to the next paragraph. To Komaki, this is just the beginning. Our physicists have already made a machine here that creates a scanning beam, she says. तो वो बोल रहे हैं कि क्या है, हमारा जो फिजिसिस्ट है वो ऑलरेडी एक स्कैनिंग बीम मशीन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और वो डेली 75 to 80 पेशेंट्स ऑलरेडी ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारे कोमैकी और राइटर जो है वो बोल रहे हैं। सो वी आर द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विद अ स्कैनिंग बीम विच मीन्स वी कैन रिमूव द न्यूट्रॉन कॉन्टामिनेशन। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक स्कैनिंग बीम मशीन है जो कि जो न्यूट्रॉन कॉन्टामिनेशन कर रहा है, जो न्यूट्रॉन जो बाकी जो साइड इफ़ेक्ट है जो कॉन्टामिनेट कर रहा है प्रोटॉन थेरेपी के साथ साथ, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन को हम अलग कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स आर क्रिएटेड व्हेन प्रोटॉन्स एंटर द बॉडी, दो इट हैपेंस रेयरली, बट दैट कॉजेस सेकेंडरी मैलिग्निटीज अ डेकेड और मोर लेटर। तो न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स के साथ साथ वो निकल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन जो है आर न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स, बट हाउएवर दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो उनके साथ साथ वो निकल रहे हैं। तो ये सेकेंडरी मैलिग्निटीज मतलब सेकेंडरी प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकते हैं। दो रेयर है, मतलब रेयर हो सकता है, रेयर मतलब कभी कभी वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, रेयर प्रॉब्लम दिखाई देता है पेशेंट्स में, बट हाउएवर दे आर प्रॉब्लमेटिक। तो वो क्या कर सकते हैं, एक ऐसे स्कैनिंग मशीन, ऐसे स्कैनिंग बीम वो लोग प्रिपेयर कर चुके हैं जो कि उस न्यूट्रॉन को निकाल सकता है फ्रॉम द प्रोटॉन थेरेपी ट्रीटमेंट। सो शी ऑल्सो बिलीव्स दैट प्रोटॉन थेरेपी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ कैंसर केयर। तो वो हमारे राइटर कोमैकी बिलीव कर रहे हैं कि ये जो थेरेपी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमारे फ्यूचर कैंसर केयर प्रोवाइड कर दी जा सकती है। पेशेंट्स को केयर करने के लिए सिर्फ यही एकमात्र एक ऐसा सुविधा है जिसके वजह से बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है हमारे पेशेंट्स को। तो ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट शी बिलीव्स। वो भरोसा करते हैं, अपना जो भरोसा है वो टूटने नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनका जो लाइफ का एक ही मकसद है, ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट, रेडिएशन रिलेटेड एलिमेंट्स जो है उनको ठीक करना है। सो दीज पेशेंट्स आर ऑलरेडी सिक फ्रॉम कैंसर, शी सेज। तो कैंसर के वजह से ये ऑलरेडी इनका बॉडी जो है अभी वीक है, वो भोग रहे हैं, अभी वो कष्ट में है। ठीक है, पेशेंट्स। तो शी सेज वी मेक देम गेट सिकर फ्रॉम ट्रीटमेंट। तो अभी जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाकी जो ट्रीटमेंट आपका अवेलेबल है, जैसे सर्जरी हो गया, जैसे आपका केमोथेरेपी हो गया और बहुत सारे आपका थेरेपी हो गया, तो वो सारे मेडिकेशंस जब दी जाती है तो पेशेंट्स और भी वीक हो जाता है। एक तो वो कैंसर के रिलेटेड टेंशन में प्रॉब्लम है उसके लाइफ में, और दोबारा जो है आप मतलब और उसको जो है टेंशन मिल रहा है। तो अभी तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, वो हमारे राइटर बोल रहे हैं। सो नाउ वी कैन मेक देम मोर कंफर्टेबल किलिंग कैंसर सेल्स बट नॉट किलिंग द नॉर्मल सेल्स। तो अभी उनको हम कंफर्टेबल बना सकते हैं, उनको अभी आराम करने के लिए दे सकते हैं। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आपका जो कैंसरस सेल है वही आपको हम मार रहे हैं, और बाकी जो आपके बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अभी भी अनअफेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके सेल में। तो अभी ये चीज़ वो दावे के साथ बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ एक ही पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट होके डाला जा रहा है ताकि वो दूसरे सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो दिस इज व्हाट आवर राइटर सेज, दूसरे सेल्स के ऊपर पड़ेगा तभी जो है वो इफेक्ट कर रहा है दूसरे सेल्स को, जो आपके साइड जो कोलैटरल सेल्स हैं, तो उनके ऊपर नहीं गिरने वाला है। तो नाउ दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ व्हाइल गेटिंग ट्रीटमेंट्स। तो अभी वो नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। उनका जो एक ओल्ड पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, वो कैसे गोल्फ खेल रहे हैं,
जस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट। मतलब वो इतना फुर्तीला महसूस कर रहे हैं कि इतना फुर्तीला वो महसूस कर रहे हैं कि वो गोल्फ खेलने के लिए भी जा रहे हैं। So, whatever happens next in this field, Dr. Ritsuko Komaki and her colleagues at the UT MD Anderson Hospital or the university are likely to be at the forefront. तो अभी कैंसर के रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट बा जो भी रिसर्च होने वाला है, ये लोग डेफिनेटली मतलब रित्सुको कोमाकी हमारे जो राइटर हैं उनका जो टीम है डेफिनेटली एक फॉरमोस्ट मतलब एक आगे का जो रोल वो प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जिसको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उनको हर एक मतलब उसी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी रिसर्च होने वाला है, they are definitely going to play some role in it. So this is the end of our chapter. Hope you guys have understood it, but before ending it, so we will also discuss the difficult words, which is equally important. So let's move on to the glossary. Viable मतलब possible है, मतलब it is possible to treat them with proton therapy in addition to all the other therapies that were traditionally available. Commence मतलब begin, ठीक है, बिगिन कर दिया गया। जो प्रोटॉन थेरेपी जो है वो आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, और कोई भी और एडिशनल प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करके जो बीम है उसको डाला जा रहा है, कंट्रोल्ड तरीके से डाला जा रहा है, ठीक है। और हम आएंगे तीसरे को। सॉरी गाइज, इट इज़ फ्लिपिंग अ लॉट मोर ऑफ टाइम। इंट्रिंग्विश्ड मतलब इंटरेस्टेड टू नो मोर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उसका मतलब है इंट्रिंग्विश्ड, ठीक है। डोजीमेट्रिस्ट मतलब एक्सपर्ट इन डोजेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जो डोज बढ़ा दी जा रही है तो वो डोज कौन तय करेगा, ये डोजीमेट्रिक्स तय करते हैं। सो दे आर अ स्पेसिफिक doctor, you can say, so they will decide what dose of treatment should be given to them. So secondary malignancy मतलब it's a cancer that arises in the background of another malignancy, मतलब एक प्रॉब्लम तो होगा ही, उसके बावजूद एक सेकेंडरी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, तो it's a malignancy, it's another cancer, or you can say it's a problem which arose because of other problem that was already there in your body. So this is the end of the topic. So in case of any doubt, please mention in the comments box. Thanks guys for taking out time to listen to look at my video. Thanks a lot. That's it guys in today's video. So please make sure that you hit the like button and subscribe to my channel. In case it's a lot of effort that is going through to make this video. So please appreciate by hitting the like button, and please subscribe to my channel in case you like to watch such kind of videos in future. So let's wait for the next video.